बिकॉज आपकी तैयारी जो होगी सिविल सर्विसेज के लिए ये आपके नोट से नहीं होगी। ये जो आप रियल लाइफ में जाओगे, बाहर जाओगे, डील करोगे, जैसे सर ने बोला टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यहाँ से आपकी तैयारी हो रही है। Now I'd like to talk about, I would like to call Shubham Shukla to share his experience. Shubham, the is yours. So, hello everyone, good evening. And first of all, very much thank you for the entire team for inviting me. Thank you so much, sir, for your wisdom. Sir is a very senior bureaucrat and we have been looking up to him. And even before we walked in, I had a discussion with sir about things and all, and his pointers have been very useful to someone who's actually going into the service in a couple of months. So I'm sure जो sir ने बोला है आप लोग को, you keep this in your head, if not in your pen and paper, but then at least in your head, right? And first of all, like, you guys are okay with the mixture of Hindi and English, right? Very good. So sir has very rightly talked about how preparing for civil services is not just about reading your notes and reading your books, and it's about understanding and living a sense of things. Because आपकी तैयारी जो होगी सिविल सर्विसेज के लिए ये आपके नोट से नहीं होगी। ये जो आप रियल लाइफ में जाओगे, बाहर जाओगे, डील करोगे, जैसे सर ने बोला टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यहाँ से आपकी तैयारी हो रही है। कुछ हद तक तैयारी सब में है, आप में है, हम में, सब में, कुछ हद तक नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन इट. And what I have been asked to deliver upon is how to choose an optional. But like, first of all, let me clear this thing. Like, you guys are appearing for 2023 and beyond, right? इस साल किसी ने प्री दिया है? Fine. How was your experience, sir? Good learning experience. Good learning experience. Fine. Very fair enough. So, and like probably almost all of you have decided on an optional, right? So like, it's a very bright crop of students and I wish you guys the best of luck. But फिर भी there are many more students who are connected to us, and then we have to talk about an option and everything. So, but before all of this, I'll actually like to tell you something about myself. My name is Shubham Shukla. I am a native to Eastern UP, but I have lived in Kolkata almost all my life. I did my graduation from BITS Pilani in Manufacturing Engineering 2018. After that, for the past 5 years or 4.5 years, I am involved in the preparation of this examination. Like, I've given 4 attempts at this examination. All 4 times I have written mains, and this was the first time that I made it to the interviews, and by God's grace I made it to the Indian Administrative Services with a rank of 43. So this is about me. My optional is PSIR. Why is this important? Like, PSIR, what is the reason for this? It took me almost 4 years to reach this because of one major mistake I made during my starting few days, was choosing a wrong optional. Like, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट किया था, I had chemistry as my optional. And मुझे पता नहीं क्यों, like, I was the faculty of chemistry at one of those JEE and NEET coachings, and I thought that चलो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, अब तो मतलब UPSC को भी पढ़ा लेंगे हम लोग, ऐसा केमिस्ट्री का आंसर लिखेंगे कि probably किसी ने देखा नहीं होगा. And I was so wrong. मतलब there's this very famous quote, sentimentals are always fools, right? So I was a sentimental कि चलो केमिस्ट्री सब कुछ है, केमिस्ट्री लेते हैं. तो I've been telling this everywhere कि आपने जब like टॉपर्स के मार्कशीट देखे होंगे तो people score 290, 300 in one attempt in an optional, in the 2 papers of optional, right? मेरे 2 attempt में मिला के 290 में थे. Like, I scored 140 in my first attempt and 150 in my second attempt, and I lost almost 2 very good years of my life chasing a wrong optional, which probably led me nowhere. Like, it was back to scratch every time. So this is where I realized that जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, आई ट्राई टू टेल देम कि ऑप्शनल का सही चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ यू हैव चोजन एन ऑप्शनल, यू मस्ट हैव गिवन गुड थॉट टू इट. देयर आर मेनी मोर स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग फॉर 2023 who haven't, and it's absolutely normal that you guys haven't, because time है, you can choose it sometime soon. So this, my part of the address to you guys is about this, choosing a right option. So what are the reasons why we need to choose a right option? Like, since like someone, like, give me some reasons, like anyone, like what do you think? Like, आपका क्या option है, sir? PSIR है, fine. Like, give me one reason why you have chosen PSIR. सर, अच्छा लगता है पढ़ने के लिए अच्छा लगता है. BA फर्स्ट ईयर में थी,
Okay. Okay. मतलब ये ग्रेजुएशन में 3 साल तो पढ़ना ही है, ये 3 साल पढ़ना ही है. Fair. और अच्छा खासा कवरेज है ऑप्शनल. Fair enough. Like anyone else wants to share why did they choose their optional as their respective option? Anyone? Economics, okay. एक background in economics. Very good. Interest in economics. और कोई reason other than graduation stream and interest? Anyone? Any other reason? Like why you have chosen philosophy? Why that reason, sir? I felt it's interesting and only short syllabus. Okay, fine. So, very honestly, tell me how many of you have actually gone through the syllabus? Like sir was talking about syllabus देखना है आपको. How many of you have actually gone through the syllabus of your optional? सर आप syllabus भी नहीं देखे हैं? नहीं सर, देख लीजिएगा प्लीज. सर उतना देर बोले हैं, बहुत ज़रूरी होता है. तो this is something to the students here and the students online कि syllabus देखना is very key. Why? Because let's say chemistry में मुझे like what happened with me. I'll give you a very personal example कि मुझे लगा chemistry में बस वही है जो 11-12 में नीट जेई में पढ़ाते हैं, वही चीज़ तो आएगा थोड़ा बहुत. पर देन जब अंदर गया तो फिर कुछ अलग ही चीज़ लग रही थी, तो फिर लगा कि भाई चलो कर लेते हैं. देन देयर वेरेंट एनफ रिसोर्सेज और गाइडेंस एंड 2 साल गया बर्बाद. तो दिस इज द थिंग दैट्स हैपनिंग. आप सिलेबस पढ़िए, नो मैटर आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम हो, जो स्ट्रीम हो. देयर माइट बी सम टॉपिक्स फ्रॉम योर ग्रेजुएशन दैट यू डू नॉट हैव इन ऑप्शन. देयर माइट बी सम टॉपिक्स जो आपके शायद पोस्ट ग्रेड में हो, बट दिस इज इंक्लूडेड इन द यूपीएससी सिलेबस. तो मेक इट अ पॉइंट, आज ही रात जाइए. सर हैज़ बीन स्ट्रेसिंग ऑन इट. डू रीड द सिलेबस ऑफ योर ऑप्शनल. पहला काम आपको ये करना है, ठीक है. एंड अदर देन दैट, लाइक किसी ने ये सोच के लिया कि इसका जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शनल का? किसी ने ये नहीं सोचा. सबके पास बहुत टाइम है, आराम से 5 ईयर प्लान बन रहा है यहाँ पे. नहीं मतलब जस्ट ऑन अ वेरी कैजुअल नोट. कई बार क्या होता है, वी चूज इन ऑप्शनल बिकॉज ऑफ वेरी मेनी फैक्टर्स. सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ दैट, I'll tell many of you why not to choose an optional or what are the factors for which you should not be choosing an optional. पहला रीज़न है दोस्ती. मेरे दोस्त केमिस्ट्री ले रहे हैं, मैं भी केमिस्ट्री लूँगा. मेरे दोस्त पॉल साइंस ले रहे हैं, मैं भी दोस्त पॉल साइंस लूँगा. वो जीएस बैच की प्रिया एंथ्रोपोलॉजी ले रही है, तो मैं भी एंथ्रोपोलॉजी लूँगा. एकदम नहीं. एवरीवन इज बिल्ड डिफरेंट. आपके सबके डिफरेंट पाथ्स हैं, गोल सेम है. यू हैव योर ओन बैटल्स टू फाइट एंड एवरीथिंग. तो प्लीज़ ये मत करिएगा कि किसी और ले रहा है तो मैं भी साथ में चले जाऊंगा, 4 दोस्त साथ में बैठ के कर लेंगे. ऑप्शन मत करिए. हो सकता है वो 3 दोस्त का वो उसमें क्रेडिट हो उस सब्जेक्ट में, बट यू माइट नॉट बी हैविंग दैट एंड यू विल एंड अप स्टक व्हाइल दे माइट बी एंजॉइंग इन मसूरी एंड एवरीवेयर. सो दिस इज वन रीजन व्हाई यू शुड नॉट बी फॉलोइंग दिस ट्रेंड. द अदर वुड बी अ फैक्टर कॉल्ड ट्रेंड. ट्रेंड मतलब कि अरे एंथ्रो में 360 आ रहे हैं लोगों के, एंथ्रो ले लेता हूँ. और क्या एंथ्रो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एंथ्रो पढ़ा ही नहीं, एंथ्रो सिलेबस देख के बोरिंग लग रहा है. मत करिएगा, नेवर. देयर आर मेनी गुड पीपल हु हैव मिस्ड आउट ऑन स्कोरिंग गुड बिकॉज दे टुक एन ऑप्शनल फॉलोइंग अ हर्ड मेंटालिटी, बट देन इट डिड नॉट क्लिक फॉर देम. ठीक है ना. इट मस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलूँगा, इट मस्ट बी केटर्ड टू यू. आप जब डीएम बनिएगा, एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर या कोई और भी सर्विस में रहिएगा, यू विल हैव सम एक्शन प्लान इन योर हेड. अब ये तो नहीं करेगा अपने दोस्त को कि फ़ोन लगाइएगा, बोलिएगा ओ भाई क्या करना है डिस्ट्रिक्ट में बता मेरे को. कोई करेगा ऐसा? करना भी मत, सोचना ही मत. यू कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम देम, डिसीजन आपका, सुनो सबका, करो खुद का. सो दोस्तों के पीछे ये मत करिए एंड हर्ड मेंटालिटी मत जाइए. थर्ड वुड बी दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ. सेंटिमेंटल्स आर ऑलवेज फूल्स. कि यार केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, केमिस्ट्री लूँगा. यार इंटेल में काम करता था मैं 2 साल, अब तो फिजिक्स ही ऑप्शन लूँगा. मत करिए. डू नॉट डू दिस. You working in a semiconductor company or a semiconductor industry does not guarantee that you are a master in physics. You have to choose your optional based on various factors. Okay, so what are these factors that we are talking about? So first thing, like there are 23, 24, 25, 26 optionals. Like हर साल एक सब्जेक्ट आता है 2 सब्जेक्ट की वजह से कुछ लैंग्वेज पेपर्स get added and deleted every year. तो on an average there are around 25 to 26 options. पहला काम, like since you guys have already chosen, but I would want all of you to give it a thought again. ओपन द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. यूपीएससी की वेबसाइट में अच्छे से बड़े उसमें करके दिया हुआ है. देखिए विच ऑल ऑप्शंस यू कैन एंड विच यू कैन नॉट. लाइक फॉर एग्जांपल सर आप पॉल साइंस में बीए कर रहे हैं ना, राइट? तो आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का कोई रेलेवेंस है नहीं, शायद आपके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स का भी ना हो. इमीडिएटली स्ट्राइक देम ऑफ. तो लाइक यू विल नैरो डाउन योर लिस्ट टू लेट्स से अराउंड 10, 5, 7.
जितना भी अलग अलग लोग का अलग अलग है. वैसे ही लेट्स से इज देयर एनी इंजीनियर अराउंड, यहाँ पे कोई इंजीनियर है क्या? फाइन नो वाइज डूड, आई मीन आई एम एन इंजीनियर सो देयर इज नथिंग टू बी सैड अबाउट इट. तो इंजीनियर में हो ब्रो, तो देयर इज नो पॉइंट यू टेकिंग मेडिकल साइंस एज ऑप्शन. या लेने का मन है, तूफानी करना है तो नहीं प्लीज सर, इतना भी तूफानी नहीं करना है. वो लेट्स लीव दैट टू द एडवर्टीजमेंट्स एंड स्टफ, राइट? उतना तूफानी नहीं करना है. तो वही है, यू हैव टू एलिमिनेट सम ऑप्शनल. कुछ ऑप्शनल आपको देख के ही वो लगते हैं. जैसे व्हेन आई वाज चेंजिंग माय ऑप्शनल टू पॉलिटिकल साइंस, आई वाज कॉट इन अ डायलेमा बिटवीन एंथ्रो, फिलॉसफी एंड पॉल साइंस. फिलॉसफी को मैं पहले देख के बोला नहीं यार, फिलॉसफी तो नहीं लेना है. आई डोंट नो व्हाई, प्लीज अगर कोई फिलॉसफी वाला, डू नॉट गेट ऑफेंडेड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शनल. आई नो पीपल हु हैव एक्चुअली क्लियर्ड इट विद गुड स्कोर, बट इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस. अगेन दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. पर्सनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या ठीक लगे. ठीक है, तो यू नैरो इट डाउन. तो आपके पास 5, 6, 7 इस टाइप के ऑप्शंस बच जाएंगे. अब देयर आर सम ऑप्शंस व्हिच आर बेस्ड ऑन योर स्ट्रीम. लेट्स से यू आर फ्रॉम पॉल साइंस, राइट? आप अगर पॉल साइंस बैकग्राउंड के हैं तो प्रोबेबली यू माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल स्टडिंग English literature, although it might not be very directly against your background, but then, or your economics, right? So it might not be very against your background, but then it might be something that you're not very comfortable. And जिस चीज़ बोलते हैं इसमें शुरू से ही वाइब्स खराब आ रही हैं, वो अपने बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं ना कि ये अंकल अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहो, ये भैया बदमाश है, बदमाशी करते हैं. तो आप लाइक क्या करते हो? यू डू नॉट नो हिम फर्स्ट पर्सन, बट देन आप उनसे पहले से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखते हो. दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड यू नाउ यू फर्दर नारो इट डाउन टू 3 or 4 सब्जेक्ट्स. अब इन जो 3 या 4 सब्जेक्ट्स में है, गिव योरसेल्फ 15-20 days. Again, like if you have finalized your option, well and good, I'll actually work. But then those of you who have not, give yourself some time, research. And by research, I mean, I do not want you to become like masters of that option, which is not practicable और हो भी नहीं सकता. आपको बस समझना होगा कि what that option is talking about. Like Pol Science and IR, many people take it because international relations है, इंडिया चाइना, ये तो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तब तो हमसे अच्छा IR का कोई आंसर लिखेगा ही नहीं. Absolutely not true. वो करने चाहिएगा. Your answers will become like a GS2 answers and your scores will tank. And this is a fact. This has happened to many very good people. Like when you progress and when you take your optional coaching and everything, you will be specifically told, especially the humanities people, Pol Science, Sociology, Anthro वाले, कि when you're writing your GS answers versus when you're writing your Pol Science answer or your optional answers, they must be very different. आप सेम आंसर इधर का उधर नहीं कर सकते हो. You'll be told this in due course of time. Do not worry about this now. Point being कि just do not, एक factor को do not just take one factor and use it to drive your decision. Okay, and again you can also look for availability of coaching or guidance, because to an extent guidance is very important. किसी भी source से. I'm not talking just about a proper coaching setup. Any form, even if a senior कोई भैया दीदी आपके कोई होना चाहिए आपको गाइड करने वाला. बिकॉज लाइक एज सर हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट, बेसिक चीज़ पढ़ो, कम चीज़ें पढ़ो, बार बार रिवाइज करो. वो तुम लोगों ने किसी ने वो मूवी देखी है, वो क्या वो जिसमें अक्षय कुमार, चांदनी चौक टू चाइना, क्यों देखी है? मतलब इट्स अ वेरी हॉरिबल मूवी, बट ठीक है, उस मूवी में एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि मुझे उस तुम्हारे वो मुँह से जो तुम्हें 10,000 बार प्रैक्टिस की है, वो मुँह से मुझे डायलॉग नहीं ऐसा ही कुछ था मुझे. हाँ, तुम्हारे उस एक मूव से खतरा नहीं है जो तुमने 10,000. एग्जैक्टली, मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार किया है, या बट मुझे तुम्हारे एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया. तो दैट सर वाज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट रीडिंग, रिवाइजिंग एंड रीविजिटिंग स्टफ. तो अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, यू हैव नो वन अराउंड टू गाइड यू, तो आप क्या करोगे? आप सेम चीज़ में घूमते रहोगे. आपको बोला जाएगा कान पकड़ने को, तो आप नाक पकड़ोगे, तो बोलोगे कि सेम हो रहा है, कुछ फेस में तो है. पॉइंट ये है कि यू मस्ट हैव समवन और द अदर टू गाइड यू, एंड गाइडेंस और मेंटोरशिप और समवन हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइमर्स, विच इज मोस्ट ऑफ यू. बाद में ग्रेजुअली लाइक आप मेच्योरिटी लेवल आएगा, यू गाइज विल बी बेटर एट इट. दिस इज हैपन टू मोस्ट ऑफ अस. केमिस्ट्री में भी आई हैड एब्सोल्युटली नथिंग अदर देन माई ओन नोट्स एंड सम ऑनलाइन नोट्स टाइप के, तो विच वॉज नॉट एनफ हैंड होल्डिंग. बट पॉल साइंस में आई गॉट एनफ हैंड होल्डिंग एंड बाई गॉड्स ग्रेस आई थिंक आई डिड वेल. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड I've been talking about research. मैं 3-4 बार बोल दिया हूँ. तो another very important source of research is the other toppers themselves. YouTube में सब कोई चलाते ही हो. कितने टॉपर्स टॉप पढ़े? let's say someone is confused between anthropology and sociology. क्या करो? एंथ्रोपोलॉजी के कुछ 2 टॉपर्स के वीडियोस देखो. कुछ जगह पे आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, what the subject is about, how much does it interest you and everything. कंपेयर करो सोशियोलॉजी से, you get a perspective. वो सीधा यू विल बोलते हैं ना, यू विल बी सीधा हियरिंग फ्रॉम द डेविल्स माउथ.
उनको पता है, उन्होंने उसमें ग्राइंड किया अच्छे से, दे नो हाउ द ऑप्शनल वर्क्स एंड दस दे विल बी एबल टू गाइड यू वेरी वेल. तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि दिस माइट क्लिक फॉर मी, दिस माइट नॉट क्लिक फॉर मी, एंड विल हेल्प यू कम एट अ डिसीजन. एंड लास्टली, लाइक सिंस none of you here is in a job or anything, like some of you might be traveling for long, तो अब आप ऐसा भी ऑप्शनल देखो, like for example let's say someone is in a job, तो उसके लिए पॉल साइंस थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है इस एस्पेक्ट से बिकॉज इट्स अ ह्यूज सिलेबस, बट देन एट द सेम टाइम इट हैज़ ओवरलैप विद GS, राइट. तो इट्स हैड प्रोज एज वेल एज कॉन्स. Overlap with GS is another important factor which should guide your decision towards choosing an optional. जैसे पॉल साइंस हैज ह्यूज ओवरलैप विद आपका क्या बोलते हैं इसको, GS2, GS4, parts of GS1. On the contrary, philosophy has overlap with GS4, philosophical thinkers and all. It does not have that much overlap. But this does not discredit the fact that you have chosen philosophy based on certain issues. However, कोई ऐसा है जिसने कोई एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है और वो मैथ्स ले रहा है. मैथ्स इज नॉट अ गुड बैड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि जब ओवरलैप ही नहीं हो पा रहा तो यू हैव टू स्टडी फॉर 4 पेपर्स ऑफ GS, ऐसे कोई प्रिपेयर करना है, एंड देन 2 वेरी न्यू पेपर्स जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इट विल बिकम वेरी हेक्टिक फॉर यू. एंड अगर आप मान लो आप जॉब में हो या फिर आप ज़्यादा देर तक ट्रैवल करके आते हो या फिर ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट्स, कॉलेज कमिटमेंट्स, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंग्स. ठीक है, तो these are a couple of factors on which you should base your decision of optional. At the end of the day, what we can do here is हम लोग बता सकते हैं आप ये देखो, आप वो देखो, आप ये चूज़ कर सकते हो. There are a lot of resources available. You have your faculties, your professors, उनसे बात करिए, take their opinion. But at the end of the day, decision आपका है. अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो लिखना आपको है, हम या फिर कोई आपके फैकल्टीज आपका हाथ पकड़ के नहीं लिखने वाले, ठीक है. बट देन डिसीजन जो भी आप लीजिए, बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, base it on research, and this is something, an attribute that you should develop as an administrator. Administrator rash decision making के लिए नहीं आता है. इंक्वायरी बैठ जाएगी, नौकरी चली जाती है, डिसग्रेस हो जाते हैं. कोई भी पॉलिसी बनती है, कुछ भी होता है, उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च, डिस्कशन, डिबेट्स, हर कुछ होता है. प्रॉपर एक टीम बैठती है, लोग बैठते हैं, डिसाइड होता है. यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है विच कैन ऑल्टर द कोर्स ऑफ फ्यूचर फॉर यू गाइस. तो आप लोग को भी डिसीजन प्रॉपर रिसर्च के साथ लीजिए. सेंटिमेंटल नहीं होना है, हर्ड मेंटालिटी नहीं दिखाना है, दोस्त यार कोई और रीज़न इसके पीछे भी नहीं भागना है. बेस इट ऑन वेरी साउंड रिसर्च एंड एवरीथिंग. एंड probably this is everything from my end, and we'll probably have an open house session right now, and I wish you guys best of luck. जो भी ऑप्शन लीजिए, remember it's almost 25% of your marks, and marks उड़ जाते हैं. 250, 270, 300 भी आ जाते हैं ऑप्शन में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप GS के 2 पेपर में शायद किसी का नहीं सुने होंगे 300 आ रहा है, बट अब पॉल साइंस के या फिर किसी ऑप्शनल के 2 पेपर में लोगों के सुनते हैं कि 300 आ जाता है. तो ऑप्शनल टू एन एक्सटेंट, योर GS and your essay will actually get you somewhere near the list, but optional can actually bring you to your service. So keep this in mind. If you have made a decision, very well, congratulations to you for that. But if you think you need to revisit, keep in your head whatever I have been telling, whatever sir has been telling, and talk to people. Like you have some esteemed faculties and people around you guiding you, helping you. Online resources हैं. So bottom line ये है, do not make the mistakes that I have made 4-5 years back. This is what I've been wanting to telling you, and I wish you all the best of luck. Hopefully जल्दी clear हो जाए. So we'll have an open session. इसी समय ले लेते हैं, ठीक है ना? Thank you so much.